we do not have power to forgive anyone. We only have the power to forgive ourselves. Forgiveness means I am not going to carry the burden of what you did to me. Forgiveness is the first point to remove any hurdle in your life. जो हमारी लाइफ के पास्ट बैगेजेस होते हैं, राइट, उसको जब हम हटाते हैं, जब उन कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर करते हैं थ्रू मेडिटेशन और एनी हीलिंग प्रैक्टिस, वी are able to step into the high vibration. How can that person really evolve on their self-worth? कई लोगों को लगता है कि जब हम एग्रेशन से डील करेंगे, जब हम ये करेंगे तो हम स्ट्रांग होंगे, अगर हम फॉरगिव कर देंगे तो लोग हमें वीक समझेंगे, हमारा फायदा उठाएंगे. Is drawing boundaries important? Keep the control of your life to yourself, even if it is your close relationships, right? Because understand that it's not they who are hurting me, it is I who's creating that hurt. Listeners, 2 years back, I came across a situation where a very close friend of mine, betrayed me. My trust was broken, the hope was broken, and I was in a situation, in a mind space where I was not able to think correctly. I was taken aback. The emotions were, just brimming over the edge, and I really didn't know what to do. For good 2 months, I had to go through this turmoil. And even today, at times when I think back to that day, I still have jitters, I still have goosebumps. But yes, what really got me out of it was forgiveness. And I believe the solution to most of the problems in our world is around, revolves around forgiveness. And today we have once again Vishali Sakuja with us, who is going to be helping us navigate the realm of forgiveness. Welcome, Vishali. Thank you so much, Pulkit. Thank you for this opportunity once again. It's always a pleasure, to discuss with you. Last time we discussed about Ho'oponopono and Reiki and other meditative techniques. So that was really informative and insightful for our listeners. And this time I'm really looking forward to have a, good invigorating discussion on forgiveness, because that's again one of my favorite topic. And I have so many queries, to resolve that keep juggling my mind. So before we move forward, why don't you give a quick introduction to our listeners? So about myself, I am a area sales director in HCL Technologies. So like everyone, I am like I work in a corporate field where I have to daily, I come across situations like you said, like sometimes there are betrayals, sometimes there are like small cheats or something or the other keeps happening in life, right? And through my life, I have learned that like in IT world or in corporate world also, it is possible to bring spirituality into life, or I would say mindfulness into life, to get through life easily and progress in your life, and not let all these aspects pull you down. Okay. So because at times people feel that spirituality is separate, and or mindfulness is a separate topic, and corporate or general life is separate, right? But that's not true. But yeah, today we'll discuss this and maybe we'll gradually unfold the things. And thank you so much for touching this topic, because this is, I think, a demand of today. Apart from being in corporate world, I am a Reiki practitioner and I do Ho'oponopono healing as well. And I've started NLP, which is neuro linguistic programming as well. So what I have, the clients that come to me, the one thing common, I would say, whether they're facing a job issue or financial issue or health issue, is somewhere they were not able to forgive things in the past, which is like basically becoming a hurdle in their life in various forms. So that's why it's really, really important to understand the concept of forgiveness and why it is important to forgive. You mentioned a point, Vaishali, where you said that forgiveness is really important in today's time. Now, we are living in an era where the world is highly unpredictable. Right. The humans living around us are unpredictable. The Right. consumption patterns in terms of emotions and things that, really cultivate our dialogues out there, they have really changed. It's information overload all around. And Mm. how do we really, manage forgiveness in such a scenario? We just came out of a really
tense situation between India and Pakistan. Mhm. And though that is going to be very, different topic and very elaborative, but talking about an individual human being, how does somebody manage forgiveness in this scenario? See, like you yourself said, that the world outside is changing a lot, right? We do not have a control over situation outside. We do not have a control over how others are going to behave. The only thing that is in our control is our mind, our behavior, and how we respond to that. Okay. So, and I want to take a step back towards our last time also I touched upon this topic of law of karma, right? How the law plays, and if we see that, and maybe then slightly we can start answering various queries that come to people's mind. So, how this law of karma works is whatever goes out, right, comes in. Yep. Basically, if I'm throwing a black ball today, right? And if I'm expecting a white ball is going to come back, this is not going to happen, right? अगर मैंने black ball फेंकी है, तो black ball ही आएगी. I will get a black ball in return, right? If I throw a white ball, then I will get a white ball in return. That's the law of karma in layman's language, basically. Now, what happens is today, if suppose a betrayal is coming from, some person towards me, right? It's happening. I take it as that no, I have never done anything wrong to them. Why they are behaving like this or this, and we get into too many no questions and like in a, I would say in a spiral thought process, and it depletes us. That no, why this, why me, why is happening to me? But if we take a step back, okay, and see that me in the past, like now, I'm not justifying what other person has done is right. Okay, that is wrong, but if we go into the past life, and people sometimes get past life therapies done, right? And that time, if we realize that something we have done something wrong towards that person, because of which today he's behaving like that towards me. So again, I am not justifying what other person is doing is right, but I'm saying there is a nothing is coincidence. It is because there is a logic behind it. But today, if I change that, I do not accept this as is, this energy as is. If I change that energy today, if I change the karma today, right, then I will put an end to this bridge that was between that person and me, and I will change the whole karma cycle. And then I will not carry this forward to other birth or even my life today in future. So I'll maybe again explain this. For example, there is a person who has done, I would say, really wrong to me. I can take actions outside. Suppose there is a crime, there is a action you can take, no, in terms of law or in terms of whatever, like no respective things you want to take outside, which is fine. You can take the action, but internally you need to think that soul to soul, because that there is a energy in front of me, a soul in front of me, a person, a being in front of me, and the being in me. So at energy level, we should not be entangled. Okay, because if I get entangled to this person, and today one of us leaves the costume and goes to another birth, then we will again get into a like a difficult karmic account. Okay, and this will keep on repeating, 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 repeating. But today, if I whatever action I have to take outside, I do, but internally I forgive the person. Okay, internally I carry on that I don't want to keep this negative energy exchange between us, then I will be able to transform this karmic cycle, is what I mean. I had a follow-up question. You've answered it partially. Now, Mhm. we're talking about two people over here, person A and person Mhm. B. Mhm. Now, as per the law of karma, it's the cycle that's happening because in my past life, Mhm. I would Mhm. have the person A would have somewhere or the other, hurt person B. Mhm. And Mhm. now that's being reciprocated in the current life. Now, if person A breaks this cycle in a manner where they Mhm. forgive the person B for whatever Mhm. is being done to them, in this current cycle. So the karma cycle ends for person A or for both person A and person B because person B is now, the inflictor.
instead of being the receiving one. So Mhm. what happens for person B in that situation? See, that's what I'm saying. Like, suppose you unknowingly pushed me, okay, and I get hurt. Okay. And today, even if I come back and tell you, no, 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 it's okay. I understand you are no, you have not done it purposely, and I want to forgive you. Okay. But because you are in a guilt that you have unknowingly pushed me, and that guilt is really high, can I really help you forgive yourself? Can I? No, right? Yeah. Because I cannot get into your mind to change the thought process that you have. क्योंकि Mm-hmm. आपसे गलती हो गई, आपने मुझे गलती से पुश किया, मैं नीचे गिर गई, मुझे चोट लग गई, और चलो मैंने समझ भी लिया, और मैं आपके पास वापस आ रही हूँ और मैं आपको कह रही हूँ कि इट्स ओके, डोंट टेक इट, लेट्स लेट इट गो एंड फॉरगिव, आई फॉरगिव यू बेसिकली। बट तब भी आपके मन में वो गिल्ट है कि नहीं, मैंने कैसे कर दिया, ये मुझसे कैसे हो गया, मैं तो कभी इतना ऐसे कर नहीं सकता था, पर मुझसे कैसे हो गया, एंड यू आर इन दैट स्पाइरल थॉट. Okay, you're going round and round and round, and you're not able to forgive yourself. So basically what I'm trying to tell is that we do not have power to forgive anyone. Okay, we only have the power to forgive ourselves basically. मतलब कि मैं उस सिचुएशन से जैसे आपके पास वो पावर है उस समय कि अगर आप अपने आप को फॉरगिव करना चाहोगे उस समय, जैसे मैं कितना भी कह दूं कि आई फॉरगिव यू, बट टिल द टाइम यू डोंट फॉरगिव योरसेल्फ फॉर व्हाटएवर रॉन्ग यू हैव डन, यू वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. सिमिलरली, अब हम दूसरा एंगल लेते हैं जहां पे आपने कुछ गलत किया, और मतलब जो मुझे लग रहा है कि मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है और मुझे गलत लग रहा है, लेकिन आप तो कन्विंस्ड हो ना वो करने के लिए, तभी आपने वो किया. नाउ Mm-hmm. बिकॉज यू आर कन्विंस्ड अबाउट डूइंग दैट, यू डिड इट एंड यू आर लाइक, यू हैव गॉन फ्रॉम द सीन, एंड आई एम सफरिंग, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ एंड अगेन. चलो आपने मुझ पर चिल्ला दिया बहुत ज्यादा, ठीक है, और आप चिल्ला के आप निकल गए, और मैं सोचे जा रही हूँ कि आपने चिल्लाया ये है, मुझे, मैं अपने अपने आप से 100 बातें कर रही हूँ, एंड आई एम कैरिंग दिस कि मैं इस पर्सन को कभी फॉरगिव नहीं करूंगी, और हाउ डेयर ही शाउटेड ऑन मी एंड ऑल दैट स्टफ, राइट. एंड आई एम नाउ इन स्पाइरल. Yep. ओके, यू आर लीस्ट बॉदर्ड, राइट. नाउ अगर मैंने फॉरगिव किया तो मैंने किसका बर्डन कम किया? मेरा Okay. बर्डन कम किया, राइट. फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि you are able to like to liberate someone, right? But can we liberate other person? No, we can only liberate ourselves from that situation. So forgiveness does not mean what you did to me is right, no, I will accept it or it is right. No, forgiveness means I am not going to carry the burden of what you did to me. जैसे आपने बोला, आपका एग्जाम्पल आपने दिया एट द बिगनिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट, राइट. यू सेड कि देयर वाज अ बिट्रेयल दैट हैपेंड एंड यू वर देयर इन दैट फॉर व्हाटएवर नंबर ऑफ मंथ्स और ईयर और व्हाटएवर, राइट. एंड द डे यू डिसाइडेड टू फॉरगिव, दैट्स हु गॉट फ्री फ्रॉम दैट. वो एक जेल में कौन बंद था? आप बंद थे. जैसे ही आपने फॉरगिव किया, आप उस जेल से फ्री हो गए, राइट. Yeah. क्योंकि सामने वाले को तो रियलाइज भी नहीं हो रहा होगा. Again, I will say in a different manner that the only way to change that karmic pattern is कि आपको soul to soul, मतलब, because obviously we are not this body, right? We are the energy, we are a soul, Yes. and we take many births, like no various births, I would say. So the point is कि इससे पहले कि एक ये दो, जैसे होता है ना कि एक फिर से रोल चेंज कर ले और किसी को फिर याद भी ना रहे कि कोई ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, आज आप ये मान के चलो कि ठीक है, इसके साथ मेरा कोई पास्ट, कुछ कुछ मैंने शायद कुछ गलत किया था जिसकी वजह से आज ये मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा है. टुडे आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द और ट्रांसफॉर्म दिस एनर्जी बिटवीन अस, एंड आई विल फॉरगिव. ओके, एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि देखो रिलेशनशिप या ये क्या है, ये इट्स अ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन अस, मतलब, Yeah. सो दैट आई विल ट्रांसफॉर्म. ओके, सो आई विल ट्रांसफॉर्म द एनर्जी की जो जो आपके और मेरे बीच में जो एक वो है, मैं आज इस ब्रिज को पॉजिटिव करती हूँ. जैसे ही मैं उस ब्रिज को पॉजिटिव करूंगी थ्रू मेडिटेशन, थ्रू होपोनोपोनो और रेकी और व्हाटएवर, there are various ways, and today we'll learn that through meditation how we can forgive someone, right, and basically forgive ourselves. how to forgive and let go. So basically जैसे ही मैंने वो let go किया, मैंने आपको forgive किया, और मैंने वो चूज किया कि ये साइकिल को मैं आज पॉजिटिव करती हूँ, तो मैंने क्या किया, वो जो आपकी ब्लैक बॉल आई थी मैंने उसको व्हाइट कर दी. अब Mm-hmm. क्योंकि मैंने उसे व्हाइट कर दी तो मुझे आगे से क्या मिलने वाला है? वो व्हाइट ही Right. मिलेगा.
तो और ये एक्सपेरिमेंट्स मतलब मैंने अपनी लाइफ में किए, मतलब इट्स नॉट जस्ट द थ्योरी, बिकॉज शायद इस पॉडकास्ट तक आने में ही ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई वेयर आई टू फॉरगिव एंड इट वाज नॉट अ स्मॉल थिंग और दिस थिंग, एंड समटाइम दिस हैपेंस थ्रू, क्योंकि हर्ट भी कौन करता है, जो आपके क्लोज होते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता कि कहीं कोई स्ट्रेंजर आके आपको हर्ट ज्यादा कर सकता है आजकल तो खैर जब आप ड्राइव कर रहे होते तो स्ट्रेंजर्स भी आपको, आपने उनको भी कंट्रोल बटन दिया हुआ है कि आप करो और मैं चिल्लाऊंगा ये वो, बट लाइक आई एम सेड दैट बेसिकली, तो जैसे क्लोज लोग होंगे एंड दे विल डू समथिंग विच इज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस और विच यू डोंट फील इज राइट, राइट? एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो इतने क्लोज हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया, और आपको अब यू नो यू वांट टू मूव ऑन लाइफ, राइट? यू डोंट वांट टू गेट स्टक, क्योंकि क्या होता है, उस स्पाइरल से आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। एंड द बैड इफेक्ट दिस नॉट फॉरगिविंग अदर्स इज कि हमारे वेट पे, हमारी बॉडी पे, हमारी जो डिजीजेस में ये मैनिफेस्ट होके मतलब हमें इफेक्ट करने लग जाता है, दैट एक्सटेंट, क्योंकि लाइक इफ यू नो इन साइंस वी नो दैट माइंड एंड गट आर कनेक्टेड थ्रू वेगस Yes, नर्व, राइट? तो yes, जो yes. माइंड जैसा बोलता है वैसे ही वो गट उसको इम्प्लीमेंट, कई बार जैसे ना आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कुछ है, तो आपके स्टमक में एक बटरफ्लाई सी आपको लगता है कि हो रहा है, क्यों? क्योंकि माइंड स्ट्रेस्ड है, उसने गट को वो इन्फॉर्मेशन दे दी, तो गट को लगा कि ये कुछ मतलब कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन में हम हैं, और अब हमें वी नीड टू डू, तो वो सारा जैसे जो स्ट्रेस है वो गट तक पहुंचा, जैसे ही गट तक पहुंचा सारे ऑर्गन्स जो आपके अलर्ट हो गए, सारे ऑर्गन्स अलर्ट हो गए, ब्लड में ये वो सब जगह जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, तो वो कहाँ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे फैट के वे में हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, किसी को कोई डिजीज होनी शुरू हो जाएगी, किसी का लिवर, जैसे एंगर है वो लिवर को इफेक्ट करने लग जाता है, अगर ग्रजेस हैं नीज में इफेक्ट करने लग जाती है, मतलब किसी का, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि किसी का नेगेटिव इमोशन किस बॉडी पार्ट में मतलब वो मैनिफेस्ट हो जाता है, किसी का किसी में, एंड देन वी फेस लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, Yeah. because we, that's why in Reiki we, or in Ho'oponopono last time also I told you, we first try with no, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you, right? Yeah. Why? Because forgiveness is the first point to remove any hurdle in your life. तो बेसिकली आप किसी और पे एहसान नहीं कर रहे हो, यू आर liberating yourself, you are doing a favor to yourself by forgiving others. And that again I'm saying, it doesn't mean what other person has done right is right, you don't have to accept that, but uh, you have to choose to transform this energy. Yes. But help me understand one thing, Vaishali. From my life experiences, as well as I was listening aaj aate hue while I was driving back home, I was listening to a short story by Nilesh Mishra. Mhm. Now, and this particular question is coming from the perspective of couples in a relationship. Mhm. Over there, forgiveness at times does not find its entry into Mhm. the relationship. And Mhm. even if it does, somewhere or the other, time के साथ it loses its track Mhm. because there are दो लोग साथ में हैं, लड़ाइयाँ होंगी, they understand each other, they evolve together, समझते हैं एक दूसरे को, grow करते हैं साथ में. Mhm. But somewhere or the other, things start to happen in a certain manner where कुछ Mhm. patterns build होते चले जाते हैं. And even after understanding के for the other person, those are becoming the triggers for emotional outburst or for the complete emotional upheaval that happens. Mhm. We have seen some very disturbed scenarios as well. Where does forgiveness comes into that? Mhm. Because अगर See, आप पैटर्न ब्रेक करने को रेडी नहीं हो, आई कैन फॉरगिव यू वंस, आई कैन फॉरगिव यू ट्वाइस, और आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ एज वेल टू बी इन दैट mhm. सिचुएशन. बट अगर वो चीज बार बार रिपीट हो रही है, हाउ डू आई रियली bring forgiveness into the picture? See, again, these kind of relationships, like no, जो parents हैं, siblings हैं, couples हैं, because they were in a very close karmic connect that today they are again together. तो या तो आप उनके साथ कुछ अच्छा करके आए हो या कुछ बुरा करके आए हो, तभी वो आपके, क्योंकि जैसे मैंने बोला, वो जो हर्ट करते हैं वो आप
उनके साथ कुछ आप करके आए हो कि वो इतने क्लोज होते हैं, तभी तो वो हर्ट कर पाते ना। आपका बेस्ट फ्रेंड बन के आ जाएंगे, या आपके हस्बैंड या वाइफ बन के आ जाएंगे, या आपके पेरेंट्स बन के आ जाएंगे, आपके इन लॉज बन के आ जाएंगे, आपका बिजनेस पार्टनर बन के आ जाएंगे, एंड दे विल बी क्लोज टू यू, एंड देन दे माइट बिट्रे यू, राइट? एंड तब आप सोचोगे कि मेरे तो ये इतना क्लोज था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, हम्म, या ये ऐसा क्यों हो गया। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों है वो कपल, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बर्थ्स में दे वर टुगेदर, और दे देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, गुड और बैड, बिकॉज ऑफ विच टुडे दे आर टुगेदर। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ लेडी, शी केम टू मी एंड शी वांटेड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। दोनों के बीच में, मतलब दोनों वर्ग, शी सेड कि हम दोनों राइट है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन अब हमें लगता है कि वी कांट बी टुगेदर। हम्म, बट आई वांट कि ये या तो हम मतलब पॉजिटिवली अलग हो जाएं, या हम साथ में रहे। लेकिन ये क्या हो रहा है अभी, बहुत डिप्लीट, मतलब जैसे वो एक वही एंटेंगलमेंट है, तो वो उससे बहुत नेगेटिव एनर्जी दोनों की तरफ से हो रहा है, कुछ ना कुछ होता जा रहा है जिससे दोनों बहुत डिप्लीटेड फील कर रहे हैं। एंड शी जस्ट वांटेड हेल्प, सो आई सेड सी, विद रेकी I will not guarantee you कि you will be together or not, because obviously it depends on your karmic account or this, but definitely this is going to, यही मतलब you have to surrender to divine, to the supreme divine soul, कि either you will be, मतलब ये positively जैसे अलग हो जाओगे, या positively आप एक साथ हो जाएंगे, right? But you have to do this forgiveness exercise, like no meditation also with me, and she agreed. For 21 days, we did no forgiveness meditation, where I just told her ki bring as a point of light, bring that soul as point of light, okay, in like a divine, I would say Paramdham, or there you just have to send good vibrations to him कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड सोल है, राइट? बस हम्म, पॉइंट, बॉडी कॉन्शियस में नहीं आना, मतलब उस पर्सन की शक्ल नहीं देखनी, उस समय रोल नहीं देखना कि क्या रोल है हम दोनों का, कुछ नहीं। सिर्फ ये कि हाँ ये, और एंड फॉरगिवनेस मांगनी है और फॉरगिवनेस देनी है। तो ये 21 डेज तक हम लोगों ने किया, और रेकी भी वर्क की। यू वोंट बिलीव, टुडे दे आर टुगेदर, wow, and she wanted a divorce, matlab, and I had not guaranteed her anything, matlab. But today it's been like 3 4 years now, and they are together. So what I'm trying to tell you is कि जब चाहे थोड़े थोड़े, क्योंकि कुछ खत्म होने के लिए ना, स्पेशली इन कपल्स, कुछ बड़ा नहीं चाहिए होता, वो छोटी 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 बातें ही एक, मतलब एक बंडल बन जाती हैं। और वो एक दिन आके आपको लगता है कि अरे इतनी छोटी सी बात पे इसने रिश्ता तोड़ दिया, या ये अलग हो गए, या क्या हो गया। लेकिन वो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो चुकी होती हैं, जो एक बेस बना देती हैं कि मतलब नाउ दे डोंट वांट टू बी टुगेदर। And in हम्म, Raj Yoga meditation, many people have shared their experiences when I went to the center and this thing, that कि they wanted to get apart, but उनको सिर्फ ये बोला गया कि आप बस ये मेडिटेशन करो, कि जिसमें आपको बस ये विजुअलाइज करना है। पहले तो आपने ऑब्वियसली फॉरगिवनेस देना है, फॉरगिवनेस लेना है, मतलब क्योंकि करना भी जरूरी है, और उनसे वो करना भी, मतलब लेकिन एट सोल लेवल। और आप उनको एज अ बेस्ट फ्रेंड सोल देखो, कि ये ट्रांस आज मैं एनर्जी, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सिर्फ एक को करना है। क्योंकि ऑब्वियसली यू, जो हमारे पास आता है वो तो एक ही पार्टनर, मतलब कई बार आते हैं ना, दोनों तो कई बार नहीं आते आपके पास काउंसलिंग के लिए और हीलिंग के लिए और फॉर मेडिटेशन, राइट? वन नो पार्टनर कम्स एंड ही और शी वांट्स टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़े, कि बहुत हम्म, ज्यादा ड्रिफ्ट्स है हमारे बीच में, बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए हैं, कैसे आगे बढ़े। तो द पॉइंट इज, अगर हम ये मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करते रहे एज अ प्रिकॉशन ऑल्सो, हम्म, तो कितने वंडरफुल और कितने ब्यूटीफुल हो जाएंगे रिश्ते। और अगर फॉर दैट मैटर किसी की डेस्टिनी में लिखा भी है कि अलग होना है, तो एटलीस्ट देर वुड नॉट बी दैट, आई वुड से पेनफुल, मतलब वो अलग नहीं होंगे, दे विल, मतलब जिस तरह अपनी कार्मिक साइकिल को पॉजिटिवली क्लोज करके वो अलग हो जाएंगे। तो अच्छा, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं है, हम्म, दे ओनली दे हैव देयर डेस्टिनी इन देयर हैंड, बट वो कर्मा करना तो हमारे हाथ में है ना। तो अगर हम राइट कर्म करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो हो सकता है उनकी डेस्टिनी पॉजिटिव और वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो दैट्स व्हाट आई वुड से। wow. While you were answering this question, Vishali, एक point आया माइंड में, is
we were discussing about the patterns and the karmic accounts. राइट राइट। So अगर ये कहा जाए, क्योंकि बहुत बारी रिलेशनशिप्स में ये क्वेरीज भी बाहर आती हैं, आई एम ओनली अट्रैक्टेड टू men or women who hurt me. हम्म। सो इज देयर, अगर वो एक पैटर्न हम नोटिस कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स का, सो डज दैट मीन कि मैं अपने कार्मिक अकाउंट को राइट ऑफ कर रहा हूँ, या कर रही हूँ कि मेरे को वही सेम चीज हो रही है और आई नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न एंड forgive and evolve from this position? And if yes, how can I achieve that? See, sometimes the pattern is repeating itself because it wants to teach you a lesson. तो क्योंकि क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा आपको एक एक कुछ सिखाना चाह रहा है, तो वो पैटर्न रिपीट होता जाएगा जब तक आप उससे बाहर, जैसे क्लास की होती है, जैसे आपने क्लास में एक एग्जाम दिया, जब तक आप उसमें पास नहीं हो जाते आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकते ना, राइट? सिमिलरली इट इज इन लाइफ ऑल्सो, इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर वन एग्जाम यू कांट गो टू द नेक्स्ट लेवल. So maybe that law of karma is trying to teach you something. Second reason could be your vibration, that person's vibration is very low. जैसे सेल्फ लव नहीं है फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो ऑब्वियसली आई विल अट्रैक्ट पीपल जैसे हु विल नो नॉट रिस्पेक्ट मी और नॉट लव मी, राइट? बिकॉज वो भी तो एक कारण बन गया ना. जैसे अगर मैं आपको एक रेडियो का एग्जाम्पल दूँ, फ्रीक्वेंसी, राइट? जैसे ही आप ट्यून इन करते हो एफएम पे, राइट, एंड अगर आप न्यूज चैनल में ट्यून इन कर रहे हो तो वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की न्यूज आपको आनी शुरू हो जाती है. जैसे ही आप म्यूजिक चैनल में ट्यून इन करते हो तो म्यूजिक आना शुरू हो जाता है, राइट? ऐसे ही अगर हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी पे या फिर हम लव के एनर्जी में टैप इन करते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती हैं. या हम तभी हम मेडिटेशन पे भी इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि देयर वी टैप इन इनटू द सुप्रीम डिवाइन सोल. उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, राइट? जैसे हम मतलब हम गॉड कह लें, हम परमात्मा कह लें, यूनिवर्स कह लें, सोर्स कह लें, मतलब वी ऑल बिलीव इन दैट देयर इज समथिंग हायर above us, right? And when we tap into his or their energy, I would say, so our vibrations get so high and so elevated that the low vibration opportunities, low vibration people will not be able to affect me. So I will elevate myself. So that's why we also suggest everyone that when you start your day, अभी क्या हो गया, हमारा फैशन क्या हो गया, उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप देखना है. सबसे पहले किस, हमने रात में किसके कॉल्स मिस कर दिए हम ये देखते हैं. नहीं, सब उठते ही हमें पहले ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में मतलब होता है ना, ट्यून इन करना है. तभी पुराने टाइम में नहीं कहते थे आज किसका चेहरा देख लिया कि आज हमारा दिन ऐसा गया. दैट डजंट मीन कि किसी और के चेहरे से आपने कुछ गलत वाइब्रेशन ले ली. बेसिकली सबसे पहले अगर आप डिवाइन की एनर्जी में, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में टैप इन कर लोगे तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया ना. तो दैट्स व्हाई वी आई ऑलवेज रेकमेंड कि स्टार्ट योर डे विद नो ग्रेटिट्यूड एंड फॉर्म कि दैट सुप्रीम डिवाइन सोल, like his power, his strength, and his love has formed a protective shield around me, and nothing can enter this shield, and I'm safe and protected. With this thought, just with one thought, but this is a big, I would say, intention and big protection you have created around yourself and your family members to move on in life and face anything that comes your way. तो स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड. इसीलिए क्यों लोग मतलब बाहर से हेल्प लेते हैं फॉर रेकी और होपोनोपोनो और एनएलपी, बिकॉज जो हमारी लाइफ के पास्ट बैगेजेस होते हैं, राइट, उसको जब हम हटाते हैं, जब उस उन कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर करते हैं थ्रू मेडिटेशन और एनी हीलिंग प्रैक्टिस और हीलिंग मोडालिटी, वी are able to step into the high vibration and move forward in life. तो जैसे हमने वो लेसन जैसे होता है ना, वो हम जल्दी लर्न कर लेंगे and we'll move ahead. So that is the key, I would say. Yeah. That's true. Just a follow-up question, on this particular aspect. We are discussing about forgiveness, but Mm-hmm. अगर कोई patterns break कर ही नहीं रहे, coming back to the spousal relationships primarily, Mm-hmm. is drawing boundaries important? And how can I bring forgiveness into that aspect? One part I can understand is I forgive myself and the other person for hurting me. Mm-hmm. Now I'm drawing my boundaries.
Hmm. How does these two come together and a person can navigate through? Okay, it's a very good question, I would say. So, सी जब आप फॉरगिवनेस करोगे, ठीक है, एंड आप जैसे मैंने बोला आप विजुलाइज करते हो कि थ्रू सोल टू सोल यू सेंड द पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू दैट पर्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक टाइम आएगा, जैसे अगर एक ग्लास है उसमें अगर कुछ गंदा भरा हुआ है और मैं उसमें क्लीन वाटर डालती जाऊं डालती जाऊं डालती जाऊं डालती जाऊं डालती जाऊं, मैं निकाल नहीं रही हूँ कुछ, सिर्फ डालती जा रही हूँ, सिर्फ पॉजिटिव डालती जा रही हूँ, तो उस ग्लास का एक दिन आएगा ना कि वो पूरा क्लीन हो चुका होगा। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी हैव टू डू विद आवर रिलेशनशिप विच आर वेरी टफ। उनके साथ तो हमें ज्यादा करने की जरूरत है। तो क्योंकि और जितने क्लोज रिलेशनशिप है उनके साथ तो ये फॉरगिवनेस कई बार ज्यादा करने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि दैट इज द की कि वो मतलब क्योंकि वही लोग आपको, they have the power na, you have given your power to them basically. First Mhm. of all, keep the control of your life to yourself even if it is your close relationships, right? क्योंकि understand that it's not they who are hurting me, it is I who's creating that hurt. वो तो कुछ कह के निकल गए। कितनी वाइफ्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड ने सिर्फ खाने की तारीफ नहीं की, राइट, और वो ही जस्ट हैड हिज फूड एंड ही लेफ्ट द हाउस, और वो लड़की सोचती रह जाती है, हाउस वाइफ हो या जो भी, मैंने इतने प्यार से बनाया, मैंने ये किया वो किया और इसने तारीफ भी नहीं की, इसको तो कोई केयर ही नहीं है, इन्होंने नोटिस भी नहीं किया आज मैंने डिफरेंट डिश बनाई, इनको याद भी नहीं रहता, मतलब एक बात के लिए दैट पर्सन हैज लेफ्ट द हाउस। लेकिन दिस गर्ल इज क्रिएटिंग सो मेनी थॉट्स 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 और इतने सारे बंडल बना लिए, एंड देन शी इज हर्ट। और फिर शाम को वो हर्ट होके बैठी है, एंड अगर हस्बैंड आता भी है तो वो मुंह फुला के बैठी है कि अब ये सॉरी बोलेंगे तो मैं मानूंगी। उनको तो उसको तो रियलाइज भी नहीं हुआ, Yep. उनको पता भी नहीं है कि हुआ क्या है। अब ये कल तक लेके बैठी है, परसों तक बैठी है, और फिर एक दिन आएगा जब आउटबर्स्ट होगा, तुमने उस दिन ये किया, तुमने ऐसे ऐसे बिहेव किया, और वो पर्सन विल बी मतलब स्पीचलेस और मतलब थॉटलेस कि ये कब हुआ, तब क्यों नहीं बोला। है ना, ये होता है ना, ये पैटर्न्स ऐसे बनते हैं और फिर हम कहते हैं कि पैटर्न्स बन रहे हैं। लेकिन और सामने वाला भी सोच रहा था ये देखो इसका पैटर्न है, ये तो कभी ऐसे नहीं करेगा, ये तो कभी मेरी तारीफ नहीं करेगा, इसको नोटिस भी नहीं होता मैंने क्या ड्रेस पहनी इसने, मतलब बंडल ऑफ दिस थिंग, लाइक। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फॉर दी स्मॉल थिंग्स ऑल्सो यू नीड टू लाइक नो कीप द एनर्जी क्लीन विद दैट रिलेशनशिप। तो वो क्लीन करने के लिए आपको फॉरगिवनेस करना ही पड़ेगा। पहले आप ट्राई तो करो, मतलब 21 days ट्राई किए बगैर मत आओ। आई वुड से लाइक विद कलीग्स और विद रिलेशनशिप्स आई हैव ट्राइड दिस माई सेल्फ। एंड जैसे एक पर्सन के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी, बहुत ज्यादा, एंड आई जस्ट मैंने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मुझे इस चाहे मतलब ये मुझे पर्सन बाद में कभी भी ना मिले, ठीक है, लेकिन मुझे इसको आगे नहीं लेके जाना। आई डोंट वांट टू कैरी इट टू माय नेक्स्ट बर्थ। आई वांट टू चेंज इट एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे उसको जो करना है बिहेव कर ले, लेकिन मैं आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो मैंने इस अपने सोल टू सोल लेवल में उसको इतना पॉजिटिव भेजा, इतना पॉजिटिव भेजा, इतना पॉजिटिव भेजा कि ये बेस्ट फ्रेंड सोल है, ये है वो है, सब मतलब, एंड यू वोंट बिलीव, it's miraculously changed. That energy is miraculously changed. The person has changed. Sometimes ये भी हुआ है मेरे कई कई ऐसे केसेस में कि पीपल हैव बहुत स्मूथली अलग हो गया, जैसे वो भी हुआ है। तो विच इज ऑल्सो गुड। मतलब आपको आपको तो यही पर्पस है ना कि उसके साथ आप डोंट वांट टू क्रॉस पाथ्स अगेन इन अ नेगेटिव वे। अब ये है कि अगर वो भी सामने भी आएंगे तो मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं होगा, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि कौन हर्ट हो रहा था, कौन उस ट्रैप में फंसा हुआ था, मैं। तो मैंने अपने आप को फ्री कर दिया। तो अब अगर वो पर्सन जैसे तो ना सामने भी आ जाए तो मुझे वो इफेक्ट नहीं कर रहा। तो दैट इज, और कई जगह पे अगर वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं तो सोचो कि पावर किसके पास थी, मेरे पास ना। आई एम मोर मोर Yeah. पावरफुल देन दैट, मतलब मैंने पॉजिटिव, मैंने कुछ नेगेटिव नहीं किया, कुछ नहीं। आई प्रेड फॉर दैट पर्सन, आई सेंड दैट पॉजिटिव वाइब्स फॉर हिम, आई जस्ट इमेजिन हिम एज अ लाइक बेस्ट फ्रेंड सोल, or it worked for both of us basically. So it's a win-win situation. So you have to first try and then see the, जैसे मैंगो का टेस्ट पहले करके देखो और फिर बताओ कि मैंगो कितना स्वीट है। Understood. Understood. Help me understand the role of ego when it comes to forgiveness, because
अगर मैं पकड़ के बैठा हूँ तब भी मैं कहीं ईगो की स्पेस से डील कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। और अगर मैंने फॉरगिव करना शुरू कर दिया है तो मेरे में कहीं ना कहीं वो ईगो आ जाती है कि मैं बहुत फॉरगिव करता हूँ। तो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अगेन आई हैव डेल्ट विद दिस विद माय क्लाइंट्स। सो देयर वाज अ पर्सन एंड शी सेड कि मतलब उसको लग रहा था कि सामने वाले ने नजर लगा दिया, कुछ कर दिया, और मतलब बहुत नेगेटिव किया है क्रिएट, और ये वो सब कुछ मतलब। एंड व्हाई वुड आई फॉरगिव? मैं कैसे फॉरगिव कर दूं, उसने इतना बुरा किया। दैट्स व्हेन आई टोल्ड हर, डू यू रियली हैव द पावर टू फॉरगिव और नॉट फॉरगिव? मतलब दैट पर्सन, मतलब उसे तो रियलाइज भी नहीं है। they have done and gone, they are living their life. Who's living in this trap, this energy, or no this? When I did this exercise, that's why we did this, do this exercise at a soul level. We always tell the person, क्योंकि जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमें वो रोल दिखता है, वो पर्सन दिखता है, वो मतलब हर्डल्स दिखते हैं, राइट? तो हम कभी भी फॉरगिव नहीं कर सकते हैं। और फिर मैंने उनको एक और एग्जांपल दिया कि ठीक है, आज, क्योंकि उसने कहा कि मैं उससे बात भी करनी बंद कर दी है। ठीक है, आपने बात बंद करनी पड़ी, तो आज आपको क्यों इफेक्ट कर रहा है उसका? आपने तो बात बंद कर दी, उसको ब्लॉक कर दिया, कोई कांटेक्ट में नहीं है, और आप अभी भी मुझसे अगर उसके बारे में नेगेटिव बात कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको इफेक्ट कर रहा है ना। ये हेल्थ इश्यूज किसके हो रहे हैं? आपके हो रहे हैं। किसके हर्डल्स बढ़ रहे हैं? आपके हो रहे हैं। तो और मतलब दैट्स व्हाई यू हैव कम फॉर नो टू सीक एडवाइस और हेल्प और समथिंग, राइट? तो कौन सफर कर रहा है? तो दैट्स द डीप थिंग वी हैव टू से कि मेरे को अपने लिए, मुझे अपने आप को माफ करना है। मुझे नहीं पढ़ना है इस, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू। एक तो होता है ना, दूसरे ने गलत किया और आप उसकी सजा खुद को दे रहे हो। व्हाई डू यू वांट टू पनिश योर सेल्फ? यू हैव टू फ्री योर सेल्फ, लिबरेट योर सेल्फ। तो इसीलिए जब आप, लेकिन और जब हम उनको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते हैं कि आप सिर्फ सोल लेवल पे एज अ पॉइंट ऑफ लाइट ये करके देखो उनके साथ, जब दैट्स व्हाई आई टुडेज एजेंडा इज टू डू दैट फिजिकली एंड नो मेंटली, कि कैसे वो करके हम, क्या एक्सपीरियंस होता है, कि व्हेन यू गेट दैट एक्सपीरियंस यू वुड योरसेल्फ नो कि यस इट इज पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगिव नॉट देम बट माई सेल्फ। so building on what you just said, how do I actually forgive? How does forgiveness looks like when it is being executed? And is it always necessary to say I'm sorry? Can I forgive नहीं नहीं some? नहीं, अच्छा वो ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू गो टू दैट पर्सन टू से सॉरी। नो 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 नो। वो तो फिर हो सकता है सामने वाले की ईगो और बढ़ जाए। राइट? तो वी आर, व्हेन वी से forgiveness and meditation, we are just doing at the soul level. We are not going to verbally go and, कई जगहों पे आप बोल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब when it comes to parents, family, this thing, मतलब you know sometimes you go and say कि अगर गलती हो गई आपसे, या कुछ, या रियलाइज हो गई, या किसी मतलब, लेकिन अगर आप लेकिन वेट कर रहे हो कि सामने वाला आके सॉरी बोलेगा तब आप फॉरगिव करोगे, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यू डोंट हैव टू गो एंड से सॉरी कि हाँ मेरे, ये जाके आप बोलोगे ना मेरे पास्ट लाइफ में कुछ हो गया था तभी मैं, शायद आपने मेरे साथ ऐसा किया, वो कहेगा हाँ हाँ हाँ, मतलब आओ, वो तो होता है ना, आओ बैल मुझे मारो। वो नहीं करना है। द की इज एट सोल लेवल। Vishali, tell me one thing now. You know, the discussions we have had, while important है लाइफ में, कुछ सिनारियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. Cases like abuse in any manner, or betrayals that are happening at a place where, even for me, जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ 2 साल पहले, तो मेरे को लगा था अच्छा खासा टाइम, like 2 months was the time when I realized I need to start working on the forgiveness. But to totally come out of it, it took me some good amount of journaling. I had to create, I wrote good 2, 3 articles. I created a story out of it to actually express what I was going through. And I created the story from a point of view, keeping myself in the other person's shoes, to understand कि क्या चल रहा था दिमाग में, कि ऐसा क्यों किया. राइट राइट राइट। When such things happen, because in business, partnerships or relationships, when we have extramarital affairs happening, वहां पे जब बहुत डीप रूटेड ट्रॉमा हो जाता है, वहां पे फॉरगिवनेस कैसे काम करेगी?
Right, right. So, this question came to my mind as well, and know, thankfully, I got this answer from Sister Shivani. Okay, and you won't believe, she said that there was a case where, like, no, like there was a parents and their child was kidnapped and killed by the kidnapper. Okay, now it's a deep, deep, deep pain. We can't even imagine what those parents would have gone through. And she exactly said that, I was in a state, basically, Sister Shivani was in a state that how do she give a condolence to this, parents, right? So, but one of the parent used to come for Raj Yoga meditation, the lady, and she, herself said that somewhere I feel that this was a karmic thing, that because in this birth we have, we are very simple people, we have never done anything wrong to anyone, and why this happened with us, like, and she said this was something karmic, but I still feel, that aggression, or that when she has to go, like, because she had filed a case also toward that kidnapper, and when she used to see that kidnapper, she felt that deep hurt, pain, aggression, whatnot, basically, right? And she came for this healing, I would say, to Sister Shivani, and she's then told us, like, basically, that uh, that they did this forgiveness exercise, or I would say meditation, with the parents. Okay, and they just told them that, see, whatever has happened in the past, you're right that it could be karmic. Okay, it's very difficult for me to say at this stage, because obviously you have gone through, the pain that you are going through, but uh, and I will not stop you from taking any action, like, outside which you have filed a case, which is fine, which is, perfect. But then internally, you should not feel depleted, or, that anger, because that is creating problem for you and your family, right? For when you the pain that you're going through. So to remove this suffering, when they did the meditation together for many, I would say, days. Now it's every person's capacity, right? And how diligently they are doing it. Some people take a moment, and when they decide that, no, I take the responsibility, they in 21 days cycle, generally we recommend that, no, that negative cycle is broken, right? So 21 days, when she regularly did that exercise, then later on, when she faced that kidnapper again, right, she was very strong, very, situation was same outside, nothing had changed, but she was strong to face that. Again, she forgave internally, but she didn't take the case back. Okay, because that doesn't mean what you have done is, I'm not going to accept it, is what I even said, right? But internally, because she doesn't want to carry this forward to her other births, or this one also, and she doesn't want to stay in that suffering, so she decided to forgive internally and take the action outwardly. And similarly, I have also done, there was a, through a tenant, we faced some issues, and, outwardly we had to take some action. Okay, so we did that. We filed a case and all that. But internally, I prayed that this karmic account should be, uh, closed forever, and there should be peace for us and for them. So that's what I say, that even in deep, you know uh, like, things, you have to go by this. It's very difficult, I understand that, because it's very, again, it is easier said than done. But again, you have to think, because either you can suffer for the lifetime, you can suffer for a day, or suffer for a month. You have to decide your suffering. So take whatever action you want to take outside, but internally, forgive and forget and let go, so that you are in peace. Your inner peace is more important than anything outside. But at times, people also link their self-worth with all the complications and instances that they've gone through in their life, Mhm. especially when it comes to the inner circle, as starting में भी बात की कि अपने ही दुख पहुंचाते हैं, दर्द पहुंचाते हैं. Mhm. Mhm. A lot of times it happens that the person getting hurt starts to
reverberate that hurt in the self-worth, the self-confidence that person Right, carries. right, 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 right. And if all those instances are happening regularly without, breaking those patterns, the person might have evolved from एक बारी forgive कर दिया, दो बारी कर दिया, but Mm-hmm. every time there's a new way of triggering that person, Mm-hmm. the pattern remains the same, but the triggers are being constantly changed. How can that Mm-hmm. person really evolve on their self-worth? Why the self-worth is coming over here is because, just say, you did one thing to me, right? And I created thousand thoughts around it. And those thousand thoughts are actually coming to, affecting my self-worth or my self-respect or anything, right? जैसे सामने वाले ने धोखा दिया एंड दे वर वेरी क्लोज एंड वी फील मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझ में ऐसी क्या कमी थी, क्या मैं इतनी वर्थ नहीं हूँ, क्या मतलब, सो फोर। तो यही जो ये मेरे थॉट्स चल रहे हैं, राइट, ये मुझे डिप्लीट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सेम सिचुएशन, मतलब दो लोगों के पास कभी कभी आती है। व्हाई वन पर्सन इज नो वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट एंड द अदर पर्सन इज वीक? क्योंकि सबका डील करने का वे अलग है ना। तो कई बार हमें लगता है कि मतलब हम एग्रेशन से स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि वो हमारी एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, मतलब इट्स अ फेक प्रोटेक्टिव शील्ड। क्योंकि हमें लगता है कि हम अगर एग्रेशन से करेंगे, जैसे कभी आप दो डॉग्स को देखो, जो एक बड़ी ब्रीड होती है और छोटी ब्रीड होती है। तो छोटी ब्रीड आपने कभी देखा होगा, दे वेरी मतलब सेल्फ डिफेंसिव ना, जैसे वो बड़े को जैसे वो करेगा, अभी बड़ा कुछ आराम से होगा, लेकिन ये छोटा उछल उछल के अपने आप को मतलब ना बाग करके ही विल बी प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। क्योंकि उसको लगता है कि इस एग्रेशन से मैं अपने आप को, क्योंकि उसको पता है कि अंदर से कि वो सिक्योर नहीं है, तो वो ऐसे इस तरह से अपना एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है। तो कई लोगों को लगता है कि जब हम एग्रेशन से डील करेंगे, जब हम ये करेंगे तो हम स्ट्रांग होंगे, अगर हम फॉरगिव कर देंगे तो लोग हमें वीक समझेंगे, हमारा फायदा उठाएंगे। नाउ फॉरगिवनेस डज नॉट मीन कि वील सिट टुगेदर एंड हैव कप ऑफ कॉफी और समथिंग, राइट? कि भाई किसी ने हर्ट किया, बेट्रे किया, और आपने उसको चलो माफ भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप बैठ के उसके साथ चाय पानी कर रहे हो, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है, विच इज ओके। जैसे मैंने बोला, आउटवर्ड एक्शंस इज डिफरेंट, इनवर्डली आई एम नॉट गोइंग टू कैरी दैट पेन। कभी कभी आउटवर्ड रिजॉल्व हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, विच इज फाइन, अगेन ऑन द कैपेसिटी और ऑन द सिचुएशन, ऑन द रिजल्ट और द कार्मिक, वो बहुत सारे अलग केसेस भी तो है ना, और अलग रीजनिंग भी है कि उनके साथ हमारा कई बार जैसे इतना ही टाइम लिखा होता है, तो आप उतना ही टाइम स्पेंड करोगे और फिर आप अपने पाथ में चले जाओगे, राइट? कईयों के साथ आपको पूरी लाइफ बितानी है। तो जैसे होता है ना, क्रिप कर करके आप साथ में रहने की बजाय फॉरगिव करके साथ में रह रहे हो, तो विच इज इजियर ना, क्योंकि Yep. आप मतलब यू हैव एक्सेप्टेड कि वो। तो बेसिकली द कंट्रोल ऑफ योर, मतलब जैसे होता है ना कि वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट हैपन ऑन इट्स ओन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई Yep. शुड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बाकी को जाके ट्रांसफॉर्म कर दूँ, नहीं। इंटेंशन शुड नॉट बी दैट। अगर हम ये भी बोल रहे हैं कि हम मेडिटेशन में उसको सिर्फ राइट वाइब भेजेंगे, बेस्ट फ्रेंड सोल भेजेंगे, इंटेंशन इज नॉट टू ट्रांसफॉर्म दैट पर्सन। इफ इट हैपेंस, गुड, इट डजंट हैपन, गुड फॉर देम, बट एटलीस्ट आई एम ट्रांसफॉर्म ना। मेरा एनर्जी लेवल, मेरा पीस लेवल, मेरा पेशेंस लेवल, या मेरा जो वाइब्रेशन है वो तो हाई होगी, आई एम सॉर्टेड इन माई लाइफ। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसी के ऊपर like I would like to understand another point. People who have achieved a sense of evolution in themselves, where they've realized they need to change. They've understood that they need to evolve from the current situation. They need to do something about it. उनको समझाना vis-a-vis somebody who has accepted that abuse as their fate, उनके माइंडसेट को शिफ्ट करके इस पॉइंट पे लाना कि दे स्टार्ट वर्किंग ऑन फॉरगिवनेस, हाउ अ थर्ड पर्सन कैन रियली हेल्प देम नेविगेट, बिकॉज कोई 10 साल 15 साल से सेम पैटर्न्स को सफर करके जी रहा है, समवेयर द अदर यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट एज योर लाइफ, कि ठीक है मेरे बुरे कर्म है, आई हैव टू गो थ्रू इट, आई हैव टू पे माई कार्मिक डेट्स इन दिस लाइफ।
and you see that the physical body has started to suffer. Those things have now manifested into ailments because of the mental traumas and mental, emotional upheaval that's happening within. उन लोगों को कैसे आप slowly, steadily get onto the path of forgiveness? Because मैं जाके सीधा बोलूंगा, they will be like, "Hey, you don't know what's happening with me." You will get an outburst on your own. See, that's where Raj Yoga meditation teaches us the two powers to face and power to withdraw. तो ये दो पावर्स का पता और कहाँ पे कर क्या यूज करना है वो पता होना, मतलब दैट ओनली हैपेंस व्हेन वी कनेक्ट टू द डिवाइन, राइट? क्योंकि हमें वो विजडम मिल जाती है कि कहाँ फेस करना है, कहाँ विड्रॉ करना है। चाहे हमें पता है कि लॉ ऑफ कर्मा इज कि कुछ मैंने किया जिससे सामने वाले ने कुछ ऐसे बिहेव किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, बट दैट डजंट मीन कि हम वो अपने आप को ये बोलेंगे अपने लिए भी। वी हैव टू बी क्या कहते हैं ना कि गुड टू आवर सेल्फ ऑल्सो। तभी तो सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस है या सेल्फ वर्थ की इंपॉर्टेंस है, कि हमेशा ये सोच के बैठना कि मेरी तो किस्मत में ही लिखा था, मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। नहीं, वो चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे आज इससे ऊपर उठ के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाना ही है। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो आई हैव टू टेक, कि ये एक्सेप्ट नहीं करके बैठ जाओ कि अरे कर्मा में लिखा था तो ऐसा ही होना है। आज जैसे मैंने बोला कि अगर वो ब्लैक बॉल कहीं भी थी हमारी तरफ से, आज मैंने व्हाइट बॉल भेज दी तो मेरा पास व्हाइट आएगी, तो क्यों नहीं मेरी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी? डेस्टिनी भी मेरी चेंज हो जाएगी, राइट? तो डेस्टिनी चेंज करना भी हम इसीलिए कहते हैं ना कई लोग कि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है। वो इसका लॉजिक ही यही है कि आज मेरे पास ये पावर है टू चेंज माई कर्मा, to keep on working on it through meditation, through healing practices, through right karma, through love, energy, gratitude. इतना कुछ है, मतलब through that divine, I would say, because source is supreme divine soul, and he has the power to uplift you, to help you face your like no whatever consequences of your karma will come to you. He has the power to bring you out of that. So connect with him. This is the, I would say, the most important key in today's life. Basically हम आज की डेट में ना हम स्लोप पे हैं। जैसे एक टाइम था कि मेडिटेशन नहीं भी करोगे या वो तो यू कुड गेट अवे विद दैट, बट टुडे यू कांट। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में जब हमने फोन लिए थे सबने, दो दिन चल जाता था बिना चार्ज के, अगर सबको याद होगा, है ना? बट टुडे वी कैन नॉट इवन गो हाफ अ डे विद no phone not getting charged, right? We have to charge after every half an hour or every 2 hours, because the usage is that high. तो स्लोप पे मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पेशली कोविड के बाद, मतलब globally people have faced losses in terms of finance or मतलब health और मतलब loss of any loved one। तो कितना ज्यादा ग्लोबली लॉस हुआ है, मतलब ये भी नहीं कि किसी एक कॉर्नर पे, मतलब एक किसी सिटी में या कहीं पे हुआ है, राइट? इट इज ग्लोबली दैट पीपल। तो आप सोचो कि यूनिवर्स में कितनी नेगेटिविटी होगी। तो दैट इज वाई वी आर एट अ स्लोप, कि अगर हम अपनी गाड़ी को ऊपर नहीं लेकर जाएंगे थ्रू मेडिटेशन, थ्रू connecting with the divine, we will come down. That is the importance, that it's no more a luxury. Meditation is no more a luxury. We have to have like no connect to divine to take us ahead. तो जैसे फोन को चार्ज करना मस्ट हो गया है, तो अब अभी पावर बैंक्स काम नहीं कर रहे ना, आपके पावर बैंक भी आपका फोन नहीं चार्ज कर रहा है, उसको खुद चार्ज करने की जरूरत है। तो ऐसे ही हम मतलब अब हमें डायरेक्ट परम पिता परमात्मा से कनेक्ट करने की जरूरत है, सुप्रीम डिवाइन सोल से कनेक्ट करने की जरूरत है। वी नीड टू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद हिम टू अपलिफ्ट आवर एनर्जीज टू फेस द सिचुएशन, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशंस आर लाइक यू सेड दिस, मतलब अभी जो सिचुएशन भी at the world level also or at country level also we faced, it's not in our hands. Yes. एंड सो मेनी पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली, अभी तो कुछ मतलब कहते हैं ना ये ट्रेलर था, और इस टाइम पे ही कितने लोगों ने फिर से वो एंजाइटी डिप्रेशन में, मतलब ऑलमोस्ट कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, मतलब नो। तो with something which is not in your hand, you can't do outwardly anything, but your, I would say, responsibility when you hear such thing is to create peace, to send peace to both the parties, to the world, क्योंकि that is like no the right karma that we can do,
at this stage. And don't underestimate the power of Mansa. This is also called Mansa Seva. Basically, that at soul level, you are blessing the whole world, because this is the highest donation you can give. Because like I think in my last conversation or I spoke that through कि आप किसी वॉलंटियर करके फिजिकल लेवल पे किसी की हेल्प करके कुछ काम कर सकते हो, कुछ डोनेशन दे सकते हो, राइट? So that is at a like physical level you are helping or donating something, but at money level you can donate something. कि मॉनेटरी लेवल पे आपने किसी की हेल्प कर दी, पर कितना कर दो, मतलब ज्यादा 10 लाख, मतलब कुछ, देयर वुड बी सम नंबर्स ना, काउंटिंग नंबर्स। या फिर आपने जैसे हम जो आप कर रहे हो, यू आर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल थ्रू योर लाइक पॉडकास्ट और थ्रू वीडियोज और ऑडियो, यू आर, you can say you can donating something, right, to the world. But when you do the meditation at soul level for the entire world, matlab you are not just reaching to every soul on this earth, but to the nature also. And पूरे ग्लोब लेवल पे आप उनको इतनी पॉजिटिविटी दे दे रहे हो। जब आपने एक व्हाइट बॉल भेजी, उसकी तरफ अगर आपके पास एक व्हाइट बॉल का रिजल्ट आएगा, तो जब आप ग्लोब लेवल पे इतनी व्हाइट बॉल्स भेजोगे तो आपको क्या उसका रिजल्ट नहीं आएगा? वो आपको तब बचाएगा जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी लाइफ में, और मतलब कि जहाँ जैसे होता है ना कि एक इंसान आपको बचा नहीं पाएगा, लेकिन वो वो जो व्हाइट बॉल्स आपके पास आएंगी, दैट विल अपलिफ्ट यू एंड टेक यू थ्रू दैट लाइक आई वुड से situation in life. Shali, before we end, I have sort of noted down some real life situations where if you can help us either how do I navigate forgiveness Mm-hmm. or have forgiveness initiators, if you can share that. And Mm-hmm. these are primarily around different relationships that we share. Mm-hmm. So the first one is around an adult child forgiving his or her parents, because आज जो हम modern society में रह रहे हैं, and this is something I've seen very common, where the children, specifically the adult children, have complaints with their parents of being absent during the formative years or not giving them enough time. While parents have their justified reasons, which somewhere or the other, as we grow, we understand. But वो जो teenage mind है, और जस्ट टीनेज से निकला वो 21-22 ओल्ड का एक माइंड है, वो नहीं समझता है, उसको एक वो इमोशनल मेच्योरिटी नहीं है। Mm-hmm. हाउ डज दैट child forgive the parents and really come out of that spiral thought process के my parents are not available for me? Mm-hmm. मुझे लगता है अभी हमें ना एक मेडिटेशन करके देखना चाहिए, एंड सबको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं दे शुड ब्रिंग वन पर्सन विद whom they have a very difficult relationship, and maybe because like I said, the experience of how to forgive and know why to forgive will uh, all be answered when we do this meditation. Like I think many people will get their answer when they do this meditation. What do you say? And surely you can do that. Yeah. Straight, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. सारी तरफ से अपनी बुद्धि को हटा लेंगे, and we will focus just on ourselves. दोनों आईब्रोज के बीच में अपने आप को फोकस को लेकर आए, सेंटर ऑफ द फोरहेड, I the soul reside here. मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट भ्रिकुटी के बीच में बैठी हुई, I am a very powerful, divine, loveful soul. मैं बहुत 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 पावरफुल हूँ, डिवाइन हूँ,
पीसफुल हूँ। एंड टुडे आई एम ट्रैवलिंग टू परम धाम। अपने आप को देखें, एक पॉइंट ऑफ लाइट जैसे इस फोरहेड से बाहर ट्रैवल कर रहा है, बियॉन्ड द अर्थ, द स्टार्स, द मून, द गैलेक्सी, बियॉन्ड एंड बियॉन्ड। देखिए मैं ट्रैवल करके जैसे एक बहुत ही रोशनी की दुनिया में मेरे परम पिता परमात्मा के घर में पहुंच गई हूँ। यहाँ रोशनी ही रोशनी है, पीस है, प्योरिटी है, एक बहुत सुकून है यहाँ। आई हैव रीच्ड परम धाम, my supreme divine soul's abode. This place is full of love, peace, light, and see supreme divine soul as a point of light, I the point of light, and my father, supreme divine soul as a point of light are sitting together. Absorb his energy, उनकी ब्लेसिंग्स को, उनकी पावर को अपने अंदर आने दें, इस सुकून को फील करें। यहाँ पीस ही पीस है, बहुत सुकून, शांति, लव। मैं आत्मा बहुत एनर्जाइज्ड हो रही हूँ, बहुत ही पावरफुल। अब मैं आत्मा यहाँ उस सोल को इमर्ज करती हूँ जिसके साथ मेरा कुछ कनेक्शन करेक्ट नहीं है, जिसने मुझे हर्ट किया या जिसके साथ मेरी कोई ग्रजेस हैं, उस सोल को इमर्ज करें। इमर्ज दैट सोल who has caused pain, hurt, betrayal, whatever negative towards you, as a point of light. Do not see the body, only point of light. I, the point of light, Parampita Paramatma, Supreme Divine Soul as a point of light, and that soul as a point of light. Now see that the light, divine, peaceful light from Supreme Divine Soul is coming to me, and I am acting as a reflector and sending this peace, this divinity to this soul. देखिए जैसे परमात्मा से वो बहुत ही प्यारी ऊर्जा, किरणें, पावरफुल डिवाइन किरणें मुझ पे आ रही हैं, और जैसे मैं उन्हें रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, भेज रही हूँ इस सोल को, भेजते ही जाएं ये, जैसे मैं भी भरती जा रही हूँ और ये सोल भी परमात्मा की डिवाइन शक्तियों से भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। परमात्मा की शक्तियां मुझ में समाती जा रही हैं और मुझसे इस आत्मा तक पहुंच रही हैं। अब इस आत्मा से मैं जन्मों जन्मों के लिए माफी मांगती हूँ। ये आत्मा मुझे जन्मों जन्मों के लिए माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। Now I seek forgiveness from this soul, that please forgive me for whatever past, present, any birth, and see the karmic connection between the two of us is getting clean, settled, closed. इस एनर्जी एक्सचेंज को देखें कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो काला धुआं बन के परमात्मा की डिवाइन लाइट में जा रही है। मेरा मन इस सोल के प्रति साफ होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है, और परमात्मा इस सोल को भी वो शक्ति दे रहे हैं
कि उनका मन मेरी तरफ साफ होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है। Visualize that the energy exchange between the two souls is getting clean, pure, divine. Anything negative in and around us is sent to God's divine light, never ever to come back again. God is empowering both of us, the two point of light, as divine, pure, powerful. Our karmic account is settled, settled, settled. Now, I forgive this soul for whatever they have done towards me, and I settle this karmic account today, now, forever and ever. हे आत्मा, मैं भी आपको माफ करती हूँ, माफ करती हूँ, माफ करती हूँ। आपने चाहे जो भी मेरी तरफ करंटली या पास में जो भी किया, मैं उसके लिए आपको भी माफ करती हूँ। हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल्ड है, सेटल्ड है, सेटल्ड है। परमात्मा की शक्तियाँ आपके साथ, परमात्मा की शक्तियाँ मेरे साथ। आप अपनी लाइफ में बहुत 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 खुश रहें, और मैं भी अपनी लाइफ में, अपने पाथ में बहुत 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 खुश रहूं। आप मुझे अलाउ करें कि अब मैं इस कार्मिक अकाउंट को आज फॉरएवर सेटल करूं, और जो लेसन हमने एक दूसरे को सिखाना था, हम ये सिखा के आगे बढ़े हैं। देखें, परमात्मा की शक्तियां हम दोनों सोल्स को एनर्जाइज कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, पीसफुल बना रही हैं। जैसे एनर्जी बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो गई है, परमात्मा ने एक मिरेकल कर डाला है। 3 stars together, happy, healthy, divine, supreme divine soul, me and this soul. विजुलाइज करें कि जैसे हमारे बीच में एनर्जी एक्सचेंज इतना पॉजिटिव हो गया है, ये बेस्ट फ्रेंड सोल है मेरी, ये बहुत 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 अच्छे हैं। परमात्मा से मैं अपने आप को भी प्यार दे रही हूँ, सेल्फ लव एक्सेप्ट करती हूँ, सेल्फ वर्थ को एनेबल करती हूँ। मेरी सेल्फ वर्थ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मुझे ये रियलाइज हो चुका है कि जो भी हमारे बीच में हुआ, इसमें मुझे अपने आप को ब्लेम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन forgive myself as well. Today, I decide to forgive myself as well. I let go. परमात्मा से शक्तियां अपने अंदर भरते ही जाएं, भरते ही जाएं, भरते ही जाएं। जैसे एक सन की लाइट को एक ग्लास रिफ्लेक्ट करता जाता है, करता जाता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा से मुझ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी समाती जा रही है, समाती जा रही है, और मुझसे इस आत्मा की तरह रिफ्लेक्ट होती जा रही है, होती जा रही है। अब इस आत्मा को जाने दें। एक पल के लिए फिर से परमात्मा के साथ सुकून से बैठें। सुप्रीम डिवाइन सोल एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, मी एज अ पॉइंट ऑफ लाइट। आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट सोल ऑन दिस अर्थ। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि स्वयं परम पिता परमात्मा आज मेरे साथ, मेरे कार्मिक अकाउंट को उन्होंने क्लीन कर दिया, सेटल कर दिया। उनका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया उस आत्मा का कि उसने मुझे अब आगे बढ़ने की शक्ति दी, इस कार्मिक अकाउंट को सेटल करने की शक्ति दी।
I'm so empowered. I'm so full of energy, so full of positive energy. I'm full of gratitude. Thank you. Thank you, Shiv Baba. Thank you, Almighty. इस प्यार को, इस एनर्जी को, वाइब्रेशंस को फील करें, जैसे एक मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है. आई एम फीलिंग लाइट, हेल्दी एंड हैप्पी. माय karmic account is settled, settled, settled. I am the Master Almighty, child of God. With this thought, I travel back. देखिए खुद को ट्रैवल करते हुए वापस इस अर्थ की तरफ, बैक टू माय रिस्पेक्टिव होम, बैक टू माय बॉडी बिटवीन द टू आईब्रोज. इस भ्रिकुटी के बीच में मैं वापस आ चुकी हूँ. आई एम बैक, बैक, बैक. आई नाउ हैव द पावर टू डील विद एनी सिचुएशन इन लाइफ. मेरे सभी हर्डल्स दूर हो चुके हैं, सभी ब्लॉकेजेस दूर हो चुके हैं. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. You can open your eyes. That was really invigorating. It really, stopped the complete thought process. Yeah, this is exactly what we have to do. Amazing. I think now stay with this thought peacefully, because वो क्यू की जो क्यू होती है ना, उस पे फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है. That's true. That's true. So with this, let's conclude our conversation for today, Vaishali. Yes. And thanks a lot for sharing with us this meditation, for forgiveness. And I'm sure a lot of listeners are going to benefit from this. And in the comment section, I will take more questions from you and I will answer them in the comment section. Surely, surely. Once again, Thank thanks, you. Vaishali, for this, truly transformative conversation and insights from your end. Thank you so much. And listeners, forgiveness isn't just about the past, it's about freeing ourselves in the present and creating space for a healthier future. For those listening, if today's discussion resonated with you, if the meditation helped you, take the first step by reflecting on who or what you need to forgive, even if it is yourself. And if you're feeling overwhelmed or unsure where to start, we have something for you. We will be sharing our spatial forgiveness meditation. So this will be also available as a separate video on our channel. So please feel free to, just go through the meditation as well. And remember, you don't have to carry your stress and worries alone. You can submit your thoughts, struggles, or emotional triggers anonymously on a mental health platform. Link is in the description. We are here to listen, and together we can take steps towards healing. Until next time, stay well, stay kind, and most importantly, stay open to the power of forgiveness. Thank you.